It is today fourth day, that is fourth part of your lesson. Can we change it? And up to Saturday we came to read that how the pariahs were being maltreated by the palas, nectars, etc. and other forward category. And also we came to read that how the elder brother of Bama behaved with the Jamindar. And also we came to read that how Bama secured good marks, first position in the class, in the school, due to the inspiration of her elder brother. When her elder brother made understand her the importance of education, and how by being a well-educated, high-educated, one can defeat the caste separation, etc., etc. Now, today, in fourth part, I am going to proceed further that what happened after securing good position, first position in the whole class. Page number 78, last para. It was the same story at school, though they always spoke ill about people of our caste. Bama is saying that not only in the society, even in the school, children and teachers used to behave in different way for the lower caste or category of the Bama, that is for the pariahs. Everybody was negligent, indifferent, and behaving adversely or maltreating to the pariahs. If ever anything had happened, bad happened, अगर कभी भी कुछ बुरा होता, they would say immediately, that means whenever, by chance, by luck, or anyhow, any adverse situation took place, कभी भी बुरा होता, negative चीज घटित होती, then the people, school, boys, teachers and the society people used to say quickly, तुरंत कहा करते थे क्या? And without hesitation, means without any shy and doubt and problem, it must be one of the Cheri children who did it. Cheri children means Cheri is the locality where the pariahs were dwelling. तो बामा कह रहे कि कुछ भी गलत होता, जाने जाने में जैसे भी कोई भी करता, तो लोग पहले बिना सोच समझ और हया के ये कहते कि जरूर चेरी, दैट इज पराया जो कास्ट है, जो उसका मोहल्ला है, वही लोग ये किए होंगे, उन्हीं के बच्चे. About 3/4 of the children in the school were palar and pariah. कह रहा है कि लगभग 3/4 of the children in the school were palar and pariah. Palar and pariah means उस कास्ट से बिलोंग करने वाले बच्चे जो थे वे 3/4 थे, यानी लगभग 4 हिस्से के बच्चों में 3 हिस्से यही थे. All the same, the school was on Nadar street, Nadar. Nadar is also a caste segment like pariahs, palar, nectar, etc. Nadar was also upper caste, thinking himself as of the high level angel, behaving maltreating to the pariahs and other people. So ये कह रहे हैं कि all the same, उसी तरह से स्कूल वाज ऑन अनदर स्ट्रीट, यानी बड़े लोगों की गली में स्कूल भी था. Everyone seemed to think Harijan children were contemptible. contemptible. Contemptible means होता है able to hatred, not deserving for respect, सम्मान के योग्य न होना. इस कह रहे हैं कि नदर स्ट्रीट में लोग जाते थे पढ़ने, और वहां हर कोई ऐसे ही बिहेव करता था जैसे यह सोच करके कि
जो परायाज बच्चे हैं ये सम्मान के योग्य नहीं है, इनके साथ दुर्व्यवहार ही किया जाता था, छुआछूत का भाव किया जाता था। But they did not hesitate to use us for cheap labor. cheap में छोटा कार्य। कह रहे हैं कि वो भले हमसे नफरत करते थे, हमारा छुआ खाना तक नहीं खाते थे, हमसे दूर रहते थे, दुर्व्यवहार करते थे, लेकिन काम के लिए वो हमारे ही पास आते थे, तब उनका छुआछूत खत्म हो जाता था। So we carried water to the teacher's house। कह रहे हैं कि इसलिए क्या करते थे छोटे काम, जैसे पानी ले जाना, तो ये परायाज जो हरिजन बस्ती के बच्चे थे यही टीचर को पानी ले जाते थे। We watered the plants। बाबा कह रहे हैं कि हम ही लोग पौधों में पानी डालते थे। We did all the course that were needed in the school। CHORS course means होता है अदर मीन एक्टिविटीज, छोटी मोटी एक्टिविटीज जो था, साफ सफाई एक्सेट्रा अदर थिंग्स, all things were done by parayas children, Harijan children। Then I was in class 7। So one day what happened when Bama was in 7th class? Every day after school I would play with the other children of our street before going home। करी है कि हमेशा की तरह जैसे छुट्टी होती थी तो बामा क्या करती थी, अपने गली के अदर रास्ते में गलियां पड़ती थी, उनमें बच्चों में खेलने लगती थी, उसके बाद घर जाती थी। उस दिन भी 7th क्लास में थी, एक दिन ऐसा ही कि ये गली में खेलने लगी, घर नहीं गई। There were 2 or 3 children who were related to me and other boys and girls who always played together as a group। करें कि 2-3 बच्चे थे जो इनसे रिलेट करते थे, यानी पराया इनके ग्रुप के थे, हरिजन के बच्चे थे, और बाकी दूसरे ग्रुप के बच्चे थे, लेकिन सब ग्रुप बना के खेला करते थे। One day एक दिन we were playing on the big neem tree in front of the school। एक दिन क्या हुआ कि ये खेल रहे थे लोग, बड़े बड़े नीम के पेड़ थे, उनपे हैंगिंग लाइक बर्ड्स, कभी उल्टा लटक रहे थे जैसे चमगादड़ लटकता है, अपसाइड डाउन फ्रॉम इट्स ब्रांचेज, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ब्रांच से जैसे नीचे कूद जाना, फिर चढ़ के चढ़ना, एक्सेट्रा ये सब चीजें कर रहे थे। आफ्टर अ व्हाइल बट जस्ट अ मोमेंट, कुछ ही समय में, वी स्टार्टेड ऑन अनदर गेम, ये दूसरा गेम खेलने लगे। रनिंग राइट अप द कोकोनट पाम एंड टचिंग इट्स टिप। ये खेल खेल में ये देखे कि कौन कोकोनट और पाम पेड़ का टिप, जो ऊपर का एकदम भाग है, पुनगी जिसे कहते हैं, उसे टच करता है। ऐसा करने में ये लोग दौड़ धूप करने लगे और तो और उस पे चढ़ने लगे। द कोकोनट पाम ग्रीव स्लैंट वाइज। स्लैंट वाइज का मतलब होता है लाइक हॉरिजॉन्टल, जैसे क्षैतिजीय, लेटा हुआ, आड़ा तिरछा, दैट इज कॉल्ड स्लैंट वाइज। तो वो ये कह रहे हैं कि कोकोनट ट्री था वो स्लैंट वाइज था, जैसे आप लोग देखते हो अक्सर पेड़ और गिर के ऐसे हो जाता है, ऐसे खड़ा होता है ना पेड़ यूं, लेकिन कभी कभी ऐसे गिर के हो जाता है, कभी ऐसे होता है, कहीं ऐसे होता है। तो जो ऐसे की स्थिति, जो ही खड़ा से ऐसे हुआ, ये स्लैंट वाइज स्थिति हो गई। ऐसे ऐसे से यहाँ तक स्लैंट वाइज होती है, थोड़ा सा तिरछा रहे से। तो ये कह रही है कि वो जो कोकोनट ट्री जिसका टिप मिनिएचुरा था वो स्लैंट वाइज थोड़ा सा आड़ा तिरछा था। At a convenient angle, convenient, convenient, convenient means the सुविधास्पद, angle means कोण, means that fallen slant-wise coconut tree was making such posture that it was very convenient to climb up on it। हाँ बैठिए दोस्तों, जल्दी नहीं है ना, हाँ बैठिए बैठिए। So they tried to touch, some of them children tried to touch by running, by climbing on the tip to the tip of the coconut tree, but they fell down। They could not climb up because they were not knowing the skill how to climb on the slant-wise coconut tree on the tip। So by the time, with the passage of time, I got there, the coconut fell at my touch, dropping with a thud। Thud means होता है the loud sound of falling on something, धड़ाम की आवाज। So what happened that anyhow Bama succeeded in climbing on the tip up to the tip of the coconut tree, and by climbing there she touched the fruit of the coconut tree, and that fruit fell down on the earth with the loud voice। Third, it was not even a fully ripened coconut। Ripe, R-I-P-E, ripe means होता है पका हुआ, ripened that is the past participle, ripe, riped, riped भी होता है, और ripe, ripened, ripened भी होता है। So Bama is saying that
The coconut fruit which fell on the earth was not totally ripened fruit, means पूरा पका हुआ नहीं था, आधा पका आधा कच्चा था. Just a green one without so much as water in it. All the children were frightened and ready to scatter. Scatter means होता है to spread here and there, तितर बितर हो जाना, बिखर जाना, फैल के भाग जाना. Due to the fear, बच्चे जो है डर के मारे कह रहे गिर गया. बड़े लोगों का कोकोनट ट्री है, वीआईपी लोग का, पलास कास्ट का, इसलिए ये लोग भागने लगे डर के मारे. Everyone said that it was I who had plucked it. Pluck PLUC के pluck means तोड़ना होता है. So every children started to blame on Bama due to the fear of the Palas caste that Bama had plucked that ripe immature coconut tree, rare coconut fruit. Then we just left it there and ran home, and ultimately they ran from there. 1 मिनट का टाइम दीजिए, आपके भैया लोग हैं, बात करके फिर आप लोग से मैं पढ़ाता हूँ, थोड़ा देते हैं. सो बामा कह रहे हैं कि जब फल गिर गया तो ये लोग डर करके वहां से भाग गए. फिर द नेक्स्ट मॉर्निंग एट असेंबली द हेडमास्टर कॉल्ड आउट माय नेम. अगली सुबह जो हेडमास्टर मींस हेड टीचर प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल कॉल्ड द नेम ऑफ द बामा, इन्हें नाम लेकर बुलाए कि तुमने कोकोनट तोड़ा था. यू हैव शोन अस योर ट्रू नेचर एज अ पराया, ही सेड. उन्होंने कहा कि तुम नीच जाति से बिलोंग करते हो, हरिजन जाति से, और वह स्वभाव तुमने आज दिखा दिया है हम लोगों को. You climbed the coconut tree yesterday after everybody else had gone home. वो कहे कि हर कोई घर जा चुका था तो तुमने कोकोनट पे चढ़ी, तुम घर नहीं गई और कोकोनट तोड़ी. And you stole a coconut, तुमने कोकोनट चुराया. We cannot allow you inside this school. आगे वो कहे कि तुम अब इस स्कूल में अलाउ नहीं हो आने के लिए, तुम्हें मना किया जाता है, डिबार किया जाता है. स्टैंड आउटसाइड, स्कूल के बाहर खड़े हो जाओ. आई वाज इन एगोनी. एगोनी का मतलब होता है असह्य वेदना जिसे व्यक्त न किया जा सके, एकदम दिल में दर्द, बहुत कड़क, मतलब एकदम न रोया जाना न चुप रहा जाना. दैट इज कॉल्ड एगोनी. तो बामा कह रहे कि ऐसे शब्द और बात सुन करके ये बहुत कष्ट और दुख में हो गई. Because I had been shamed and insulted in front of all the children. क्योंकि इन्हें भी एहसास था, बड़े हुए थे कि सब बच्चों के सामने मेरा अपमान हो रहा है, मुझे बेइज्जत किया जा रहा है. इसलिए बामा को बहुत दुख हुआ इस बात पे, बहुत दुखी सी हो गई. All the children eyed me in a strange way. Eyed me का मतलब इनकी तरफ देखा, घूर कर देख रहे थे, ध्यान से देख रहे थे. सभी बच्चे इन्हें देख रहे थे अजीबोगरीब तरीके से. walked off to their classes, और फिर बच्चे अपने क्लास में चले गए. I was in such shock and pain. अब बामा को पूरा झटका लगा था, बहुत कष्ट असह्य वेदना में थी. I did not know what to do. अब बामा कहने कि मुझे यह नहीं पता था कि मुझे क्या करना चाहिए. Then a teacher who lived in our street came by and advised me to go to the priest, tell him everything and bring a letter from him to the headmaster. तभी एक टीचर आए इनके जो स्कूल में, जब वे बाहर खड़ी थी स्कूल के और इसके बगल से गुजरे तो पूछे तो ये रीजन बताएं कि क्यों ये बाहर खड़ी है. तो टीचर ने इन्हें सलाह दिया कि तुम ऐसा करो कि जाओ सीधे पृष्ठ यानी पुजारी के यहाँ, क्योंकि पुजारी का सबसे बड़ा पोस्ट होता था उस समय सम्मान, जो कह देते थे पुजारी लोग, वह टाला नहीं जाता था. तो कहे कि उन पुजारी से लेटर लिखवा कर लाओ, वो लेटर लिख देंगे तो ये लोग तुम्हें स्कूल में एंट्री करा लेंगे. I went to the priest and told him the whole story in detail and begged him to give me permission to go back to school. Bama went to the priest, requested to write a letter to admit her in the school. बामा ने प्रार्थना किया कि अरे पुजारी बाबा लिख दो, मुझे पढ़ना है, मैं स्कूल में बैठने लगूं, मुझे परमिशन मिल जाए. The priest first response was to say, after all you are from a चेरी. तो पुजारी भी कह रहा है कि अरे कैसे लिख दूं, तुम आखिर चेरी दैट इज द हरिजन बस्ती से बिलोंग करती हो ना. You might have done it. तुमने ऐसा किया होगा, तुमने जरूर चोरी किया होगा क्योंकि तुम हरिजन से बिलोंग करती हो. You must have done it. जरूर किया होगा. The tears started welling up in my eyes. इनके आंखों में आंसू भर गए, आंखों से बाहर गिरने लगे. And I wept. बामा रोई. After a long time, लंबे समय बाद the priest wrote a note asking that I should be allowed to return to the school. फिर बहुत देर के बाद प्रीस्ट ने लेटर लिखा, इसे रोता हुआ देखकर बामा को, इस बच्ची को स्कूल में एडमिशन करा लो, जाने दो, जो की अब क्या करोगे. When I took it to the headmaster, he abused me roundly. Abused me roundly का मतलब होता है, abused me को छोड़ो, abused someone roundly का मतलब होता है to behave rudely.
एंड अब्यूज टू समवन, किसी को बहुत ही बुरा भला कहना। तो जब ये लेटर पुजारी का लाकर हेडमास्टर को दी, हेडमास्टर पढ़ा तो बामा पे भड़क गया और बड़ा उल्टा सीधा बुरा भला कहा, लेकिन फिर भी विवश था, पुजारी जी का लेटर था, एडमिशन लेना था। यूजिंग एवरी बैड वर्ड द केम टू हिज माउथ एंड देन टोल्ड मी टू गो टू माई क्लासरूम, हर बुरे से बुरा शब्द कहा, बामा को गाली दिया, उसके बाद कहा जाओ और जाकर बैठ जाओ क्लास में। When I entered the classroom, the entire class turned around to look at me. जब ये बामा इंटर की क्लास में तो पूरा क्लास इनको पलट के देख रहा था बड़े गौर से, अजीबोगरीब दृष्टि से। And I wanted to shrink into myself. Shrink का मतलब होता है, shrink into का मतलब होता है सिकुड़ना, अपने में ही छिप जाना, समाहित हो जाना। तो बामा चाहते थे कि कैसे भी मैं सिकुड़ जाऊं, छिप जाऊं, अपने आप में समाहित हो, को मुझे देखे ना। As I went and sat on my bench, still weeping, जाकर बेंच पे बैठी लेकिन फिर भी ये रो रही थी। Means this whole lesson, the main theme, keynote of this lesson is the satire on the casteism, custom and system of the Indian society. समाज में जो छुआछूत, भेदभाव एटसेट्रा की परंपरा है इंडिया में, उस पे एक व्यंग है यह लेसन, पूरा आलोचना है। और उस समय का 19th सेंचुरी का जब देश आजाद हुआ था, उस टाइम का देश का और अंग्रेजों के टाइम में क्या दुर्दशा थी, दैट हैज बीन शोन हियर बाय द नरेटर, पार्टिकुलरली ऑफ द सोसाइटी, अबाउट द सोसाइटी। ओके, थैंक यू। इफ यू हैव एनी डाउट देन